آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ترقیاتی کاموں کو روکنے کی سازش اور کرائے کے غنڈوں کا استعمال کرنے چیف منسٹر کا الزام۔ ہنمکنڈا میں عوامی حکمرانی کے جلسے عام سے ریونت ریڈی کا خطاب۔ کانٹریکٹ ملازمین کو باقاعدہ بنانے کے جیو کو تلنگانہ ہائی کورٹ نے کر دیا کالعدام، کہا اب ہر تقررات کے لیے جاری کیے جائیں گے نوٹیفیکیشن۔ تلنگانہ کے کھمم میں 4 سالہ لڑکی کی دل کا دورہ پڑنے سے موت، گاؤں میں غم کی لہر۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس 25 نومبر سے ہوگا شروع، 24 نومبر کو کل جماعتی میٹنگ طلب۔ تلنگانہ میں گزشتہ چند دنوں سے سردی کی لہر میں اضافہ، ضلع آصف آباد میں 10.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں لبنان سے میزائل حملے کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں 1 خاتون ہلاک اور 6 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دارالحکومت تل ابیب میں بھی لبنان سے حملے ہوئے جس میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی طیاروں نے وسطی بیروت میں بمباری کر کے 4 افراد شہید اور 18 افراد کو زخمی کر دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے پناہ گزین اسکولوں پر بھی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 76 فلسطینی شہید ہوئے۔ ادھر اسرائیل میں آباد افراد غزہ کے شہریوں کو بھیجی گئی عالمی امداد لوٹنے لگے۔ غذائی سامان سے بھرے اقوام متحدہ کے 109 ٹرک لوٹ لیے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا، پورچگل، ناروے، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کی اور ہندوستان کے ساتھ ان ممالک کے باہمی تعاون کو بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ نریندر مودی نے انڈونیشیا کے صدر ابو وسو بیانوتو سے ملاقات کی اور انہیں ہندوستان کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ شعبوں میں ہندوستان اور انڈونیشیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسے نئے شعبوں میں وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد مودی نے پورچگل کے وزیر اعظم لوئس سے ملاقات کی۔ دونوں اطراف نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا، جن میں معیشت، قابل جدید توانائی، دفاعی اور عوام کے تعلقات اور کثیر الجہتی فورمز میں تعاون شامل ہے۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے کل صبح 7 بجے سے 38 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر کے روی کمار نے آج بتایا کہ ان 38 اسمبلی حلقوں میں 20 نومبر کو صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک ووٹنگ ہوگی، جبکہ 31 پولنگ مراکز میں شام 4 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں کل 528 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ 472 مرد اور 55 خواتین امیدوار بھی انتخابی میدان میں شامل ہیں۔ نیشنل پارٹی کے 73 امیدوار ہیں، جن میں 60 مرد اور 13 خواتین ہیں۔ آزاد امیدواروں کی تعداد 257 ہے۔ دوسرے مرحلے کے 138 اسمبلی حلقوں میں پرامن ووٹنگ کے لیے نیم فوجی دستوں کی 585 کمپنیاں اور JAP کے 60 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ تقریباً 30,000 ذیلی دستے اور ہوم گارڈز اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر روی کمار نے بتایا کہ دوسرے مرحلے کے لیے 1.23 کروڑ ووٹرز ہیں، جن میں 62.8 لاکھ مرد، 61 لاکھ خواتین اور 145 تیسرے جنس کے ووٹرز شامل ہیں۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے آج سابق وزیر اعظم آنجہانی اندرا گاندھی کے 107ویں یوم پیدائش پر ان کی سمادھی شکتی استھل پر جا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا
करोड़ों हिंदुस्तानी आयरन लेडी मोहतरमा इंदिरा गांधी की ज़िंदगी से तहरीक लेते हैं। राहुल गांधी ने अपनी दादी को याद करते हुए अपनी और प्रियंका गांधी की अपनी दादी की गोद में बैठी तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर पोस्ट करते हुए इन्होंने कहा कि दादी हिम्मत और मोहब्बत दोनों की मिसाल थी। इनसे ही मैंने सीखा है कि कौमी मफाद के रास्ते पर बेखौफ होकर कैसे चलना चाहिए। इनकी यादें मेरी ताकत हैं जिनसे हमेशा मुझे रहनुमाई हासिल होती है। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी दादी मोहतरमा इंदिरा गांधी ने हमेशा महाराष्ट्र के नंदुरबार से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की है। इनका मानना था कि कबायली समाज की सकाफत बेहतरीन और मुनफरिद है क्योंकि ये फितरत का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल 24 नवंबर को रिवायती कुल जमाती मीटिंग तलब की है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मीटिंग पार्लियामेंट के आइंदा सरमाई इजलास के पेश नज़र बुलाई गई है। इन्होंने कहा कि सरमाई इजलास 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को ख़त्म होगा। इजलास का मकसद अपोजिशन जमातों को कानून साजी के एजेंडे के बारे में जानकारी देना और बहस के मौज़ूआत पर तबादिले ख़याल करना है। इसके अलावा आइन की 75वीं सालगिरह के मौके पर पुराने पार्लियामेंट हाउस में संविधान सदन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने कौमी यकजहती दिन के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश की जो मंगल को इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश की याद में मनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने एक मजबूत क़यादत वाली नेहरू की वारिस को जारी रखने और मुल्क के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाली मुताद्दिद इनकलाबी सलाहियत मुतारफ़ कराने पर खातून आंझानी इंदिरा गांधी की सिताइश की। रेवंत रेड्डी ने याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबों और ख़वातीन की बेहतरी के लिए खुसूसी कोशिशें की थीं। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के इन अल्फाज से मुतासिर होकर के ख़वातीन हिंदुस्तानी ताकत की अलामत है। तेलंगाना हुकूमत भी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वज़ीर आला ने कहा कि 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति के तौर पर बनाना रियासत में इंदिरा हुक्मरानी के अहम मकसद में एक है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने साबिक़ हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर करने के लिए जारी करदा जीओ को कलअदम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि साबिक़ हुकूमत ने डिग्री, जूनियर और पॉलीटेक्निक कॉलेजेस के लेक्चरर्स को रेगुलराइज किया था। बेरोज़गार नौजवानों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए रेगुलराइज किया था। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अदालत को बताया कि ये इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने इस जीओ को मनसूख करने का फैसला सुनाया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बेशुरू हुकूमतों की जानिब से जो काम अंजाम नहीं दिए गए हैं, इन कामों को अंजाम देने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में साजिशों और किराए के गुंडों के ज़रिए रियासत की तरक्की में रुकावटें हाइल की जा रही हैं। इन्होंने आज हनमकोंडा आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में हुकूमत की 1 साल की मियाद की तकमील के मौके पर मुनक़्क़िदा अवामी हुक्मरानी जश्न जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि वरंगल ज़िले की तरक्की से निस्फ़ तेलंगाना को तरक्की देने के मुतरादिफ होगा। चर्च పెడదాం తారీఖు నిర్ణయించు చంద్రశేఖరరావు ఏ రోజు చెప్తావో ఏ సమయం చెప్తావో ఆ రోజు అసెంబ్లీ పెడతా రా నువ్వు ఓడితే ఇంట్లో పోయి బంతవా రాహుల్ గాంధీని చూసి సిగ్గు తెచ్చుకో 3 సార్లు ఓడిపోయినా ప్రతిపక్ష ఉండి
కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 150 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు మండు టెండలో మంచు కొండలో పాదయాత్ర చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నోడు అంటే బాధ్యతాయుతమైన ప్రతిపక్ష నాయకుడు. అధికారంలో ఉంటే దోసుకుంటా, ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ఫామ్ హౌస్లో వండుకుంటా. ఇదా నీ విధానం? నిజంగా बीआरएस लीडर एम कृषांक ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दामाद जी सत्यनारायण की मुबैना मिल्कियत वाली कंपनी मैक्सबीन फार्मा के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में शिकायत दर्ज करवाई है। बीआरएस के सोशल मीडिया के कन्वीनियर कृष्णांक ने कंपनी की माली बेकायदगियों की तहकीकात की ख्वाहिश की और दावा किया कि सत्यनारायण के अफराद ख़ानदान बैंक धोखाधड़ी और फंड्स की मुंतकिली से मुतालिक ईडी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। बीआरएस लीडर के मुताबिक ईडी ने 311 करोड़ रुपए के मुबैना गबन के मामले में जी रामकृष्णा रेड्डी और दूसरों के नाम लिए थे। मुंतकिल करदा इन फंड्स का इस्तेमाल मनखूला जायदादों के उसूल और दूसरे कारोबार में सरमायाकारी के लिए किया गया। కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో రైతుల భూములను తీసుకొని మ్యాక్స్బియన్ ఫార్మాకి కట్టబెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించారు. అయితే ఈ మ్యాక్స్బియన్ ఫార్మా గొలుగూరి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారి అల్లుడున్నారో వారికి ఇందులో 16 లక్షల షేర్లు ఉన్నాయి. 20 లక్షల షేర్లు ఎస్పీఎస్ ఫెసిలిటీ అండ్ దానికి సంబంధించిన డైరెక్టర్ అన్నం శరత్ గారి ఉంది. గొలుగూరి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి కుటుంబం సభ్యుల మీద ఇప్పటికే ఈడీలో విచారణలు జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు ఎన్నో ఫ్రాడ్లు చేసిందని వాళ్ళ మీద దర్యాప్తులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఆ ఈడీ దర్యాప్తులో ఇప్పటికే కుటుంబ సభ్యులకు రుణాలను దారి మళ్లించిందని, ఫ్రాడ్లు చేసేదని, వాటితో ఆస్తులను చేసుకున్నారని, వ్యాపారాలు కూడా మొదలుపెట్టుకున్నారని ఈడీ విచారణ చేస్తుంది. అయితే ఈరోజు కొడంగల్ ఫార్మా చుట్టూ మ్యాక్స్బియన్ ఫార్మా ఏదైతే చర్చ జరుగుతుందో ఇందులో కూడా మరి నిధులు దారి మళ్లించినట్టు ఒక అనుమానం ఉన్నది. కాబట్టి మ్యాక్స్బియన్ ఫార్మా మీద విచారణ చేయాలని ఈరోజు ఈడీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఢిల్లీలో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने अक्टूबर में शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अहम संग मील को पार करने का ऐलान किया, क्योंकि तेलंगाना के दारुल हुकूमत में वाक़े इस एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त 2.4 मिलियन से तजावुज़ कर गई, जो 21.7% जायद है। घरेलू मुसाफिरीन की आमदोरफ्त में 22.7% सालाना इजाफा हुआ, जबकि बैनुल अक़वामी ट्रैफिक में 16.3% सालाना इजाफा हुआ है। एयरपोर्ट ने 14 अक्टूबर को एक ही दिन में तकरीबन 87,000 मुसाफिरों का रिकॉर्ड बनाया। एक और रिकॉर्ड 20 अक्टूबर को कायम किया गया, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा सिंगल डे हवाई जहाज़ की नकलो हरकत ATM की जुमला तादाद 583 थी। मुसाफिरों की आमदोरफ्त मुसलसल बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर के चंद्रशेखरपुरम के एकलव्या गुरुकुल स्कूल में 25 तलबा बीमार हो गए। मुकामी अफराद ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि प्रिंसिपल विष्णु प्रताप शुक्ला ने वालिदैन और आला हुकाम को इस बात की इत्तला नहीं दी कि तलबा 2 दिन से उल्टी और इसहाल की शिकायत कर रहे हैं। इत्तला मिलने पर अहदेदार कोवरू MLA प्रशांति रेड्डी ने तलबा को फराहम किए जाने वाले इलाज के बारे में तफसीलात मालूम की। हुकाम का ख्याल है कि आलूदा पानी और खुराक तलबा की बीमारी की वजह बन सकती हैं। MLA ने तालिबे इल्मों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी। स्कूल बस के दरख्त से टकरा जाने के नतीजे में बेशतर तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले के केसरा में उस वक्त पेश आया जब मंगल की सुबह प्राइवेट ट्रैवल्स की एक बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस दरख्त से टकरा गई। ये बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 40 तलबा सवार थे। मुकामी अफराद और दीगर राहगीरों ने इस हादसे के बाद बच्चों को बचाया।
इस हादसे की इत्तला के साथ ही इनके वालिदैन वहां पहुंच गए, जिन्होंने बच्चों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जोनल कमिश्नर खैरताबाद ने मंगल को कोथाचेरुवु और शेखपेट मेन रोड को खूबसूरत बनाने के कामों का शख्सी तौर पर मुआयना किया, जो जुबली हिल सर्कल के तहत आते हैं। इन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मकसद यह है कि इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों में इजाफा किया जाए और कोथाचेरुवु को खूबसूरत बनाने के इक़दाम भी किए जाएंगे। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार रामचरण ने आंध्र प्रदेश के कड़पा की मशहूर अमीन पीर दरगाह, जिसको पेद्दा दरगाह भी कहा जाता है, इस पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर दरगाह के जिम्मेदारों ने इनको दरगाह शरीफ की तफसीलात से वाकिफ करवाया। अदाकार ने उर्स की तकरीब के हिस्से के तौर पर मुशायरे में भी शिरकत की। कबल अज़ीं वो हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे में कड़पा पहुंचे थे। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। आदिलाबाद के देहातियों ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले में इस मरतबा सर्दी की लहर में काफ़ी इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। कोमरम आसिफाबाद ज़िले में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ज़िले के तिरियानी मंडल में दर्ज हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदिलाबाद के बेला मंडल में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक अफसोसनाक वाक़े में तेलंगाना के ज़िले खम्मम में दिल का दौरा पड़ने से 4 साला लड़की की मौत हो गई। ज़िले के MV पालम गांव में ये वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक जी विनोद और लवनिया की एक बेटी प्रहारशिका थी। इसकी मां लवनिया, जो ग्रुप 3 के इम्तिहानात में शरीक हुई थी, लड़की को इसकी दादी और दादा के साथ गांव में छोड़ गई। इम्तिहान ख़त्म करने के बाद लवनिया दोपहर को अपनी बेटी को घर वापस लेने गांव आई। मां को देखकर लड़की इससे मिलने दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन लड़की को गले लगाने के लिए हाथ फैलाने वाली मां के पास पहुंचने से पहले ही वो अचानक गिर गई। इसने सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोश होकर गिर गई। मुकामी RMP डॉक्टर ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इसे फौरी तौर पर खम्मम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। इसका मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इस वाक़ये से गांव में गम की लहर दौड़ गई। तरक्याती कामों को रोकने की साजिश और किराए के गुंडों का इस्तेमाल करने चीफ मिनिस्टर का इल्ज़ाम। हनमकुंडा में अवामी हुक्मरानी के जलसे आम से रेवंत रेड्डी का खिताब। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के जियो को तेलंगाना हाई कोर्ट ने कर दिया कलअदाम। कहा, अब हर तकर्रुरात के लिए जारी किए जाएंगे नोटिफिकेशन। तेलंगाना के खम्मम में 4 साला लड़की की दिल का दौरा पड़ने से मौत, गांव में गम की लहर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से होगा शुरू। 24 नवंबर को कुल जमाती मीटिंग तलब। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की लहर में इजाफा। ज़िले आसिफाबाद में 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज। ये थी एतमाद की खबरें।
آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.